بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد چلیں اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں، اور آیت نمبر 61 آئی تھنک، ہاں 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو، بڑی طویل آیت ہے، بڑی آیت ہے، ذرا غور سے سنیے گا، آدھے پیج کی آیت ہے یہ، اور کس ٹاپک پر ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، دیکھ بھائی ہم تو ہرگز نہیں ایک کھانے پر صبر کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ڈیلی ایک ہی کھانا ایک ہی کھانا، تو دعا کرنا تیرے رب سے، کیا دعا کر، وہ نکالے ہمارے لیے، کیا نکالے، یہ جو زمین ہے نا، اس زمین سے، یہ جو زمین اگاتی ہے اس میں سے اس کی ترکاری نکالے، اس کی ککڑی نکالے، اور اس میں سے وہ گیہوں نکال کر دے، ہمیں دال نکال کر دے اور پیاز نکال کر دے، لو بھائی یہ ساری چیزیں وہ ہمیں نکال کر دے۔ یہ کیا ہے ڈیلی من و سلوہ کھاتے رہو، ہم کو نہیں جمتا ہے بابا، آپ بھی ایسی کرتی ہیں؟ آپ کہیں گے ارے ہم تو اب بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اب تو ہمارے بچے ایسا کرتے ہیں، کیا مما ڈیلی ایک ہی چیز پکاتے رہتے ہو، ہاں ڈیلی ایک ہی چیز، اور وہ تو چھوڑیں، اچھی چیزوں کے لیے بھی روز روز کہتے ہیں کیا ڈیلی پیزا کھائیں، کیا ڈیلی بادام کاجو ہی کھاتے رہیں، کچھ اور اچھا ہونا چاہیے، اب بڑا اس سے بھی اچھا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دین میں کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں صرف کھانے کے لیے بھیجا ہے، صرف کھانے کے لیے، بات پہ غور کریے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں صرف کھانے کے لیے یہاں نہیں بھیجا ہے۔ کچھ لوگ واقعی ایسا کہتے ہیں نا وہ کہ تمہیں اتنا ہی کھانا ہے جتنا تمہیں جینے کے لیے ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کچھ لوگ ہیں نا بس یعنی کہ کھانے کے لیے ہی جی رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج۔ یہ قوم کھانے پینے کی اتنی عادی ہو گئی تھی نا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں لکھے ایک جملہ اپنے قرآن میں، چونکہ یہ مقصد سے ہٹ گئے تھے اس لیے یہ دنیا داری میں پھنسے ہوئے تھے۔ آج ذرا الٹا مزاج ہے، آج کیسا، آج امت کا بھی یہی حال ہے، امت مقصد کو بھلائے بیٹھی ہے، اس لیے آج جو ہے نا مقصد کو بھلانے کی وجہ کیا ہے، آج آپ اکثریت مسلمان کو دیکھ لیں، آپ ان سے کہیں چلو بھائی کام کرتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں، پیسہ جمع کر کے اچھا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایک دم جلدی جلدی مسلمان آئے گا، پیسے بھی لگا دے گا آپ کے ساتھ، وہ لنگر بھی لگا دے گا، سب کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ قوم ایسا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، امت محمدیہ کو کھانے پینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور آپ ذرا اس پر غور تو کریں کیا کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، یہ زمین جو اگاتی ہے، سبزی ترکاری ہو گئی، ککڑی ہو گئی، اور گیہوں ہو گیا، دال ہو گیا، پیاز ہو گیا، سب مکس کر کے بنا دے تو کیا بن جائے گا، کھچڑا بنے گا کہ نہیں بنے گا، بنے گا نا۔ اور آج اس امت کو دیکھ لیں، ناؤ ڈے جو آج حال چل رہا ہے، جو یہ مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں اس میں کتنے کھچڑے بڑھتے ہیں اور کتنے کھچڑے بنتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سوچئے نا ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا، ان کو اللہ نے اتنی بہترین جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام دیا، پیارا رسول دیا، کلیم اللہ دیا ان کو، اور انہوں نے مقصد کو فوت کر دیا۔ سوچئے اپنے آپ کے لیے یہاں پہ ایک عمل کی بات لکھیں، خود کا محاسبہ کریں کہ کیا میں بھی ایسی کرتی ہوں، کیا مجھے بھی جو ہے وہ یعنی کہ میرا زیادہ تر وقت کچن میں جاتا ہے، کیا میری زندگی کا مقصد صرف کچن میں لوگوں کو روٹی اور سالن بنا کے دینا ہے؟ آپ دیں، آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ایز اے مدر آپ اچھا کام کریں، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ٹھیک ہے، آپ اچھے سے اچھا کام کر کے دیں، ایک بہو کی ذمہ داری کریں آپ پوری، لیکن مقصد حیات کو نہ بھولیں، نہ قبر میں اور نہ حشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے اتنی روٹیاں کیوں نہیں بنا کر دی، گرم گرم ہی کیوں نہیں دی، ایک ہی سالن کیوں بنایا، دو کیوں نہیں بنایا۔ مقصد حیات کو سمجھیں، ذمہ داری سے فارغ ہو کر سارا وقت آپ کا اپنا ہے، لگا دے کھپا دے اپنے آپ کو، لیکن آج عورتوں کا رونا ہی کچن ہے، اللہ اکبر۔ تو تھوڑا سا ٹائم مینیج کرے اپنا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ، لیکن انہیں ڈانٹ کتنی ملی ہے دیکھیے، ہاں، اور غور کریں تمام آیتوں پر، ڈانٹ انہیں اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے یہ کیا بات ہو گئی بھائی، کیا تم چینج کرنا چاہتے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو، وہ اتنا یعنی کہ
अच्छी चीज़ है, बेहतर चीज़ है। वो अदना चीज़, उससे तुम जो बेहतर चीज़ को बदलना चाहते हो, यानी ये दुनिया, ये मतलब इनको मेहनत करके ना खाने का था, हम खुद उगाएंगे खुद खाएंगे, ऐसा। मन व सलवा फुकट में मिल रहा था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। तो याद रखें कि जब तक ये थोड़ा मकसद पे थे, मन व सलवा आसमान से उतर रहा था। और यही अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मेरे काम करते रहो, मैं तुम्हारे काम करते रहूँगा। जी, आज भी आप अल्लाह के दीन में लग जाएं, और फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह आपसे आपके काम करवाएगा। अल्लाह आसमान से मदद उतारेगा। मन व सलवा तो खैर अब नहीं उतरेगा। आप सोचे कि चल भाई मैं दिन का काम करूँ, रोज़ मेरे किचन में मन व सलवा उतरेगा, मेरे घर वालों का भला हो जाएगा, साथ में मेरा भी भला हो जाएगा। जी नहीं, मन व सलवा तो नहीं उतरेगा। अल्लाह आसमान से फरिश्तों को उतारेगा और आपकी और मेरी मदद इस तरीके से करेगा। उसका वादा है, और हमने अल्लाह के हर वादे को सच्चा होता देखा अपनी ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा इस आयत पे थोड़ा सा गौर करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इतनी बेहतरीन चीज़ से बेकार चीज़ लेना चाहते हो, एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं करती हूँ। सोचिए, आज अक्सरियत मुसलमान भी यही कर रहा है। इतनी खूबसूरत किताब को छोड़कर दुनिया के पीछे जा रहा है ना। इतनी बेहतरीन अल्लाह ने वो दीन का रास्ता दिया है, रसूल की सुन्नत दी है, उसको छोड़कर बेकार चीज़ों के पीछे जा रहा है। ये है, आज भी लोग देखिए कि अपने लिए 5-5 हज़ार के कपड़े लेने के लिए पीछे नहीं हटते, लेकिन दीन में ज़रा सा लगाने के लिए उनसे कहो तो ओहो अच्छा, ये क्या, दीन में भी अब पैसे लगेंगे। ये है, देखिए, जबकि वो 5,000 का कपड़ा आप कितनी दफ़ा पहनेंगे, बाद में फेंका ही जाएगा। लेकिन आपने अल्लाह की राह में कुछ लगाया तो अल्लाह बोल रहा है ये बेहतर है, ये मेरे पास जमा हो रहा है। सोचिए, और अपने आप को सोचिए यहाँ पर, क्या मैं हलाल को छोड़कर हराम के पीछे तो नहीं जा रही हूँ? मैं दुनिया को लेने के लिए आखिरत तो नहीं भूल रही हूँ? मैं दीन के काम में आगे बढ़ रही हूँ या मैं दुनिया के काम में आगे बढ़ रही हूँ? सब चीज़ों पे अपने बारे में सोचे, और ये समझ जाए कि एक चेक लिस्ट है मेरे और आपके लिए। ठीक है, चलें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो भाई, अभी मुझसे तो ये नहीं होगा, तुम्हें ये तमाम चीज़ें चाहिए तो चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, वहाँ तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा जो तुमने मांगा है। देखिए, इनके इस हरकत की वजह से आज कहना चाहिए, इन शॉर्ट यहाँ पे लिख लें अपने कुरान में, कि दीन में पीछे हटने की वजह से अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके जो है वो इनकी ज़िंदगी पर ज़िल्लत और जो है वो मोहताजी मार दी गई। अल्लाह के गज़ब इनके ऊपर आया। और ये क्यों आया? क्योंकि इन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया। नंबर 1, पहला जुर्म। कैसे इंसान के अंदर मोहताजी, मिस्कीनी, ज़िल्लत इंसान को कब मिलती है? आज भी अगर कुछ मुसलमानों को ज़िल्लत मिल रही है ना, तो देखिए ये वजह बताई जा रही है कि अल्लाह की किताब को अहमियत नहीं देते, पहली वजह। दूसरा ये कि नाहक नबियों को कत्ल करते थे। याद रखें कि यहूदियों के नस नस में है खून खराबा और इस तरीके से, और इसका जीता जागता सबूत आज मैं और आप देख रहे हैं। अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो देखिए कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो गाज़ा में गदर मचा रखा है। हाँ, तो यही बताया जा रहा है। और इतनी जुर्रत क्यों हुई इनकी? क्योंकि ये इन्होंने जो नाफरमानी की, ये नाफरमानी की वजह से ये हद से बढ़े। और हद से बढ़ना क्या है? अल्लाह की आयतों का हक अदा नहीं करना, अल्लाह की आयतों को मानना नहीं और उस पर ध्यान नहीं देना, ये है हद से बढ़ जाना। अभी आप समझे कि इस आयत को एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। याद रखें कि अल्लाह के हद में रहना इंसान के लिए निजात का सबब होता है, इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अल्लाह के हुदूद को समझ जाए कि जैसे एक रस्सी है, ओके। जब तक आप उस रस्सी में बंधे हुए हैं, अल्लाह की हद में रहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी आपने किसी जानवर को गले में रस्सी बांधी होगी, जब तक वो रस्सी में बंधा हुआ है तो ठीक है। अगर उस बाउंड्री से, उस रस्सी के बाउंड्री से ज़रा सा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो क्या होगा? मे भी उसकी गर्दन दब सकती है, और या तो छूटेगा तो बहुत दूर अपने मालिक से भाग जाएगा, चला जाएगा। बस यही हाल अल्लाह की जो है वो किताब की हुदूद का है। जब तक इंसान एक एक बंदा अल्लाह की हद में रहता है, अल्लाह की बाउंड्रीज में रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की सेफ्टी में रहता है। उसकी हद से निकल बाहर करने की कोशिश करता है तो फिर अल्लाह ताला उससे इंतकाम लेता है। ठीक है, चले, मुझे उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। चले इंशाल्लाह अगली आयत आप देखिए कि ये अक्सर लोग हैं ना जो इसका गलत मतलब निकालते हैं। ठीक है,
तो इसको मैं दोनों तरीके से आपको जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इस आयत में तो सबसे पहली बात आई, ये आप समझ लें कि जन्नत के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो कोई हसब और नसब नहीं देखेगा कि ये यहूदी है तो जन्नत में डाल दो, ये नसारा है तो जन्नत में डाल दो, जी नहीं। बल्कि जिसका अमल जो है ना, याद रखिए कि जिसके अमल ने जिस किसी को पीछे छोड़ दिया ना, तो उसका हसब नसब कुछ काम नहीं आने वाला। तो आज यहाँ पर जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम आज जो दुनिया में जितने दीन फॉलो किए जाते हैं सब के बारे में अल्लाह ने बता दिया कि जन्नत की शर्त क्या है। और मुसलमान देखिए कि क्या सोचता है, ओहो हम तो उम्मत मोहम्मदिया हैं, नबी की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कौन जो है वो डुबाएगा या हमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो जन्नत की शर्त क्या बताई गई है, पहले इस आयत को सुन ले कि अल्लाह ताला जो है आयत नंबर 62 है ये, हाँ, इन्नल लज़ीना आमनू, ये कौन है, मुसलमान। अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, नसारा हो, ठीक है, या फिर वो साबीन हो, इनमें से कोई भी हो, जो कोई भी ईमान लाएगा अल्लाह पर, नंबर 1 शर्त, और वो आखिरत पर ईमान लाएगा, दूसरी शर्त, नेक अमल करेगा, तीसरी शर्त, तो उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका अजर उनके रब के पास है और ऐसे लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा और वो कभी गमगीन नहीं होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि यहूदी भी नसारा भी सब जन्नत में जाएंगे, हाँ अगर वो आखिरत पर ईमान रखते हो या कुछ भी, तो गलत फहमी मत पालिए, यहाँ मुसलमान का भी नाम आया है। अगर यही बात होती कि यहूदी नसारा सब जन्नत में जाने वाले हैं तो यहाँ मुसलमान का नाम नहीं आता। अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पर दिमाग को खोला जा रहा है, गौर फिक्र करवाया जा रहा है कि तुम मुसलमान हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि तुम जन्नत में चले जाओगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। असल चीज़ ये है कि तुम्हारा ईमान और अमल साले देखा जाएगा कि तुम जो है, क्यों ऐसा ये बोला गया है, क्योंकि यहूदी ये दावा करते थे कि हम ही जन्नत में जाएंगे, नसारा भी यही दावा करते थे हम ही जन्नत में जाएंगे। ज़रा ही पे गौर करिए, ही यानी हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो यहूदी नसारा की तरह तो आज मुसलमान भी कहता है ना, और कि भाई हम ही जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला बोल रहे नहीं नहीं, ऐसे में तुम्हारे जो है वो आरज़ियाओं पे तमन्नाओं पे थोड़ी जन्नत में डाल दूंगा, बल्कि ये शर्त है, ठीक है। चले आगे, फिर इन्हीं की स्टोरी अल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करते हैं कि याद करो, उस वक्त को भी याद करो कि जब अल्लाह ने लिया था तुमसे पुख्ता वादा। ये कौन सा वादा था, ये भी ज़रा समझिए। ये वादा ये था कि इन्हें तौरात दी गई, इन्हें ये कहा गया कि रसूल की बात मानो, अल्लाह की बात मानो, तौरात में जो है वो सब तुम्हें फॉलो करना है। ये लोग नहीं नहीं नहीं, वी कांट डू दिस, हम तो नहीं सुन सकते, हम नहीं मान सकते, हमसे नहीं होगा। जैसे आज भी लोग कहते हैं ना ये कुरान के बारे में, नहीं नहीं हम कुरान को फॉलो नहीं कर सकते, हाँ हमारी नानी दादी ने तो पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं, अब हम क्या करें, नहीं हमसे नहीं होगा ये वो। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि सुनो, तुम जो है, तुमसे ये अल्लाह ने वादा लिया था, जब इन्होंने इस वादे को तोड़ा, ठीक है, तो फिर अल्लाह ने इनसे कहा कि पकड़ो, ठीक है, नहीं एक मिनट, ऊंचा किया हमने तुम पर कोहे तूर को, एक सज़ा के तौर पर इनके साथ अल्लाह ने ये मामला किया था। अब जब ये थोड़ा सीधे हो गए, ओहो अल्लाह हमको अजाब में ना डाल दे, तो फिर उसके बाद थोड़े से सही हुए ये। तो अल्लाह ने इनसे फिर क्या हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, जो दे रहा हूँ ना उसको चुपचाप से मजबूती से पकड़ लो। जरा ध्यान से सुनिएगा आयत को, मजबूती से पकड़ लो, इसका क्या मतलब होता है। ये देखिए, ये उनकी किताब की बात चल रही है, लेकिन आज कुरान में अगर मुझे और आपको बताया जा रहा है तो इसलिए कि हमें भी मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह ने कुरान दिया है, इसको मजबूती से पकड़ लो। मजबूती से पकड़ने का मतलब देखिए अपने यहाँ कुरान में कि आपको इस कुरान को हर हाल में थाम कर चलना है। थामने से मुराद ये है अल्लाह के हुक्म को मानना है। जी, आज लोग मानते हैं ना हुक्म अल्लाह का, कब मानते हैं, जब अल्लाह से कोई बात मनवानी हो, अल्लाह ताला हाँ हाँ ठीक है हम नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, बच्ची की शादी करवानी है, घर खरीदना है, अच्छा जॉब चाहिए, ऐसा वैसा, और वही नाफरमानियाँ देखे फिर मानते हैं ना लोग। कोई मर गया तो कुरान उठा लिया, फिर उसको पढ़ेंगे, सब करेंगे, है ना, ऐसा। और नहीं मानते तो कहाँ नहीं मानते,
बच्चों की शादियों में अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, कोई जीता है मरता है तो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हैं, जी नहीं। अल्लाहु अकबर। सोचिए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हें हर हाल में कुरान को पकड़ कर चलना है, कुरान से हटना नहीं है तुम्हें। चाहे क्यों पता है कुरान को कुव्वत से पकड़ने का मतलब क्या है? ये है कि सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम्हारे घर में शादी ब्याह हो, किसी का जीना मरना हो, फिर तुम्हें कुरान से पीछे नहीं हटना है, ताल्लुक नहीं टूटना चाहिए कुरान से। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं, जिक्र करो जो इसके अंदर लिखा हुआ है। क्यों? ताकि तुम बचो। लो भाई, तकवी का मीनिंग काफ़ी आता है कुरान में, यहाँ हम बचने में लेंगे। क्यों? आप ऐसे भी ले सकते ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। और किससे बचो? अल्लाह की नाफरमानियों से तुम बचते रहो, इसलिए तुम कुरान को मजबूती से थामो और अल्लाह इस कुरान के ज़रिए अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो। देखिए, आप में से जो लोग जिनका पहला दौर चल रहा है ना, बिल्कुल जो पहली दफ़ा कुरान को सुन रहे हैं इस तरीके से कि हम कुरान को ऐसा भी समझ सकते हैं, बड़े खुशनसीब है वो लोग। जी, इस वक्त जो उनके दिल पे कुरान पढ़ रहा है ना, वो बहुत अच्छा असर छोड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो है ना, अपने आप को सोचें, रखें अपने आप को, मैंने कुरान को किस लिए लिया? मेरा नाम कुरान से दूर करने वालों में जुड़ता है या कुरान से जोड़ने वालों में जुड़ता है? बस इतना सा सवाल लिखें और अपने ताल्लुक़ को तलाश करने की कोशिश करें। अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया था, पकड़ो, थामो, कुरान में जो कुछ है लोगों तक फैलाओ, पहुँचाओ। कुरान यानी उनकी किताबों के बारे में वही मैसेज मुझे और आपको भी दिया जा रहा है कि इस किताब में भी जो है उसको फैलाओ। लेकिन बदमाशों ने किया क्या? अल्लाह ताला बोल रहे ये हुक्म दिया था और किया है तुमने क्या? सुम्मा तवल्लैतुम, ओहो मिन बादि ज़ालिक, पलट गए फिर भी तुम, बात ही नहीं सुनी तुमने मेरी। तो सुनो, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, तो याद रखो अगर तुम पर अल्लाह का फजल नहीं होता और उसकी रहमत नहीं होती ना, तो तुम्हारा दिवाला निकल जाता, तो ज़रूर तुम नुकसान उठाने वालों में से होते। अल्लाह अकबर। सोचिए, आज उन्हीं लोगों का दुनिया में दिवाला निकला हुआ है आखिरत के मद्देनज़र। हाँ, ठीक है, जो कुरान से दूरी इख्तियार करते हैं। और उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब आगे जो एक स्टोरी बताई जा रही है ये इन्हीं लोगों की, ये जो बदमाशियाँ इन्होंने दिखाई थी। बनी इसराइल को जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सैटरडे का दिन इबादत का दिन फिक्स किया था। अल्लाह ने कहा था कोई तुम्हें अपना कारोबार नहीं करना है, सब करना है। एंड उसमें से एक ग्रुप ऐसा था जिनका पेशा था फिशिंग, उर्दू में माहीगिरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, मछलियाँ मारते थे वो लोग, तो इन्हें मना किया गया था। लेकिन इन्होंने क्या बदमाशी करी कि ये फ्राइडे नाइट को है ना जाल बिछा देते थे। ठीक है, सैटरडे कुछ नहीं करते थे, एंड आफ्टर सैटरडे संडे की सुबह में वो सब मछलियाँ निकाल लेते थे। कहते थे देखो ना, हमने सैटरडे कुछ किया क्या, लेकिन तरीका तो तुमने किया ना, क्योंकि फ्राइडे नाइट में जो ये जाल लगाते थे ना, तो उसके अंदर मछलियाँ भर भर के आ जाती थी और ये आजमाइश थी इनके लिए। तो वही अल्लाह ताला अब उनको याद दिला रहे हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह आगे जाकर हम वाक़या पढ़ने वाले हैं, सब मैं यही बता दूंगी। तो आपके अंदर का एक कहना चाहिए कि सब्र ख़त्म हो जाएगा, सब्र रखें और ये अपने अंदर एक तड़प रखें, ओहो अच्छा आगे इतना सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह ने कहा कि देखो, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, जी हाँ, मुझे पता है, हम तो जानते ही हैं उन लोगों को, तुम में से कौन है जो सैटरडे के दिन हद से बढ़ गया था। और उनकी इस हरकत की वजह से सज़ा के तौर पे अल्लाह ने कहा कूनू क़िरादतन ख़ासिईन, जाओ जलील बंदर बन जाओ तुम सब के सब। अल्लाहु अकबर। सोचिए, ये नाफरमानी की सज़ा थी इनकी, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया था। साइंस क्या कहता है, पहले हम बंदरों की औलाद थे, और आई थिंक सो कि इस बेस पे वो कहता होगा, लेकिन बेसिकली आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वैसा नहीं बनाया था। आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया था ना, तो आदम की औलाद वैसी नहीं, बल्कि ये इस बेस पे साइंस कहता है कि पहले इंसान बंदर था, उनकी नस्लों में से। अल्लाह आलम, ये ये सारी गैब की बातें, जो चीज़ें हम माजी की जानते नहीं, उसमें हम दावी नहीं कर सकते। इस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, तुम्हारी इस हरकत को हमने जो है बाद में तुम लोगों के लिए भी और तुम्हारे बाद में आने वालों के लिए जो है ना एक नसीहत बना दी, बड़ा इबरतनाक वाक़या तुम बना दिया।
और सॉरी, नसीहत किसके लिए बनाया? लिल मुत्तकीन। अल्लाहु अकबर। ये मुत्तकी लोग, अल्लाह के फर्मा बरदार लोग क्या इससे नसीहत लेते हैं? ये जायज़ा करते हैं। याद रखें कि जब भी अल्लाह का हुक्म आता है तो बहाने नहीं बनाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला हाँ बस हमने सुन लिया, हम इसको मानेंगे। और उसके बाद जो है, आज भी कुछ लोग हैं ना ऐसा कि इस तरीके से ना, तो अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, मुत्तकी लोग इससे जो है वो नसीहत लेते हैं। ये एक थी बात, ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अगली आयत पर आप कह सकते हो कि एक गाय का वाक़या आ रहा है। ये गाय का जो वाक़या आ रहा है तो सूरतुल बक़रा, ठीक है, यहाँ गाय का वाक़या हम देखते हैं और ये बनी इसराइल का ही एक वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का ही है। हुआ यूँ था कि एक शख्स का कत्ल हो गया था। अब कत्ल होने के बाद है ना, लोग है ना एक दूसरे पर टाल रहे थे, तुमने किया, तुमने कत्ल किया, तुमने किया, ऐसा ऐसा सब वो लोग एक दूसरे पर टाल रहे थे। तो यहाँ पर ये वाक़या जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है, तो इसके पीछे 3 रीज़न्स थे। एक तो उस कातिल को पता करना था। दूसरा ये कि ये लोग मिस्र से आए थे तो वहाँ गाय की पूजा हुआ करती थी। एंड आज भी देखिए कि कुछ लोग गाय को क्यों नहीं खाते हैं? गाय को मतलब उसका गोश्त, हाँ, गाय को नहीं, हाँ, उसके गोश्त को क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो उसको पूजते हैं, है ना? वो कहते हैं नहीं, हम जिसको पूजते हैं उसको खाएँ क्या, ऐसा। तो इन लोगों का भी हाल ऐसा था कि गाय की मोहब्बत बहुत रच बस गई थी इनके दिलों में। अल्लाह ने कहा अच्छा इतना इतना अहमियत दे रहे हो मुझसे ज़्यादा, अच्छा। तो अल्लाह ने फिर उन्हीं के हाथों उसको ज़िबा करने का हुक्म दिया, उनके शऊर को बेदार करने के लिए कि हमारा जो माबूद है तो उसको ज़िबा करके हम खा कैसे सकते हैं, उनके शऊर को बेदार करने के लिए। तीसरा एक रीज़न ये था कि ये लोग दोबारा जी उठने का इनकार करते थे, बाअसल मौत जिसको कहा जाता है, उसका इनकार करते थे। तो इस एक वाक़ये में तीनों सवालात के जवाबात उन्हें दे दिए गए। अब हम इसको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसमें से जो है वो लेसन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेसन तो आगे है, बड़ा मज़ेदार, इंशाल्लाह आप उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। चलिए, अल्लाह ताला बोले ज़रा उस किस्से को भी याद करो। जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, अपनी कौम से मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि भाई तुम्हें ना एक बकरा मीन्स एक गाय ज़िबा करो। बकरा असल में अरबी में कहा जाता है गाय को, ओके? एक गाय को ज़िबा करो। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है उन लोगों ने कहा कि क्या तू हमसे मजाक करता है? सोचिए, आज भी यानी वो अल्लाह के रसूल उनको ऐसा कह रहे हैं, क्या मजाक करता है? सोचिए ज़रा। आज भी बहुत सारे लोग मुसलमानों में ऐसे हैं जिनके सामने अगर अहकामात आप रखें ना तो वो कहते हैं छोड़ो, चलो सब मजाक है, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी, जो करना ही कर लो। और बड़ी हैरानी की बात मैं आपसे कहूँ तो इसमें न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था और यकीन करें कि अगर वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल ना होता तो शायद जुर्रत ना करता कोई भी इसको बोलने की। ठीक है, किसी की स्पीच में सुन रही थी, वो बता रहे थे कि इतनी जुर्रत है लोगों की कि आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा था कि रमज़ान का महीना, हाँ, कि जब तक तुम्हारी इफ्तारी है तो ये तुम्हारा जो है समझो कि रमज़ान का दिन है या रोज़े का टाइम है, और उसके बाद यानी इफ्तारी के बाद तुम जो है बस हमारे पार्टीज़ में आओ और शोज़ में आओ और उसके बाद कोई भी रोज़े का दिन नहीं है तुम्हारा, इस तरीके से। और अगर किसी को हमारी पार्टीज़ बंद करना है, मिस गैदरिंग बंद करना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें ना अपना हज बंद करो। वहाँ भी तो मर्द औरत सब एक साथ रहते हैं ना। सोचिए, दिल दहल जाता है ऐसी बातें सुनकर और पढ़कर, और कहने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब एक बात बताएं, अब लोग ये मजाक नहीं तो और क्या है? तुमने हज को कहाँ लाकर रिलेट किया? किससे मैच कर रहे हो तुम? और आप में से हर कोई गवाही दे सकता है जो गया नहीं है वो भी, कि कहीं कभी ना कभी तो उसने कोई वीडियो देखी होगी हज की, कि कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला वहाँ जाने वाले की निगाहों को कितना कंट्रोल कर देता है। वहाँ आपको कोई दिखेगा नाउज़ बिल्ला कोई बदतमीज़ी करते हुए, या कोई औरतों को छेड़ रहा है, या नाउज़ बिल्ला कोई जो है वो बेअदबी का काम कर रहा है, बेहयाई का काम कर रहा है? अस्तगफिरुल्लाह। कैसे लोग इस तरीके से, हाँ, जब वो हज जायज़ है, वहाँ पे मर्द और औरत जायज़ है, तो हमारी मिस गैदरिंग भी जायज़ है, औरतों और मर्दों की पार्टियां भी जायज़ है। इस तरीके से ये है दीन का मज़ाक, ये है दीन का मज़ाक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अजीब लगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह की पनाह, आऊज़ु बिल्लाहि, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। क्या पता चला मजाक करना जाहिलों का काम है, और इतना घटिया मजाक दीन को लेकर। देखिए, अल्लाह के रसूल भी मजाक किया करते थे, लेकिन वो मजाक से न किसी का दिल दुखता था और ना ही कोई झूठ बात उसमें शामिल होती थी। ऐसा मजाक आप कर सकते हो,
कोई झूठ बात शामिल नहीं है उसके अंदर जो, ठीक है। तो यानी कि जाहिलों का काम है जो इस तरीके का मजाक करते हैं। ओके ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, अच्छा एक काम करो। फिर उन्होंने लगा कि भाई अब ये जो है रसूल नाराज़ हो जाएंगे, कोई अजाब हम पर आए इससे पहले। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, दुआ कर तेरे रब से, वो हमको बताएगा कि वो गाय कैसी हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वो गाय कैसी हो, ना वो बूढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा जवान होनी चाहिए, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अधेड़ उम्र की भी नहीं होनी चाहिए, इसके बीच की उम्र की होनी चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा करो जो तुमको हुक्म दिया गया है, ठीक है। फिर वो लोग आए, फिर वो लोग कहने लगे तेरे रब से पूछना ज़रा उसका कलर कैसा हो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बहुत डार्क येलो कलर की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा देखो, सफरा वो येलो, आप कह सकते हो कि पीले पीले रंग की होनी चाहिए, गहरे रंग की, और इतनी खूबसूरत कि देखने वालों को अच्छी लगनी चाहिए। अब आप सोचिए कि कितने सवाल जवाब, ठीक है। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि ना हमें समझ नहीं आ रहा है वो गाय कैसी हो, फिर पूछो ना तेरे रब से, वो हमको बताएगा कि वो गाय कैसी हो। क्यों भाई? क्योंकि हमको ना थोड़ा सा शुबा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। एक बार और पूछ लो ना, इंशाल्लाह हम जो है ना सही काम करने लगेंगे, हम ज़रूर हिदायत पा जाएंगे, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वो गाय जो हो ना बहुत ज़्यादा काम करने वाली हो, यानी ज़मीन को जोतने वाली नहीं होनी चाहिए, खेती को पानी देने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुसल्लमा होनी चाहिए। लो भाई, हर बार एक भारी 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 जवाब उनको मिलता रहा कि वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, मुसल्लमा को आप कह सकते हो कोई उसके अंदर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। ओहो, जब उन्हें लगा ये क्या बात हो गई भाई, ये तो डिमांड पे डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है बस बस बस, कालू आना जी ना बिल हक, बस कर मूसा, बस अब हमको बात समझ आ गई है, अब तो हक पर आया है, अब तो हक लेकर आया है। फिर उन लोगों ने अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया। और अल्लाह ताला देखो क्या बोल रहे, पॉसिबिलिटी थी वमा कादू या फालून, मुमकिन था कि वो ये करते ही नहीं। क्या पता चला? यही ना, याद रखें कि दीन में समीना व अताना का मामला होना चाहिए। हाँ अल्लाह ताला मैंने सुन लिया, मैं इसको मानूंगी। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, सवाल पे सवाल। इसीलिए समझाया जा रहा है कि दीन में ज़्यादा सवालात मत किया करो। क्यों? जो हुक्म मिल गया है उस पर अमल करो। ज़्यादा उसमें आसानियाँ सोचोगे ना कि मैं सवालात कर लूँ तो आसानियाँ पैदा हो जाए, जी नहीं, और मुश्किल से मुश्किल दीन हो जाएगा अगर तुमने अपनी मर्जी उसमें चलाई तो। इतने बदबख्त है ये कि अल्लाह के रसूल उनको हुक्म दे रहे हैं अल्लाह का, लेकिन मानने को तैयार नहीं, इस तरीके से। और अच्छा जरा जुमले पे गौर करिए, क़ालू उदउ लना रब्बुका, क्या बोल रहे थे? तेरे रब को पूछ, तेरे रब को पूछ। ये जाहिलों की निशानी है। अरे वो रब तो तुम्हारा भी था ना, अल्लाह तो सबका रब है। लेकिन ये किस तरीके से बात करते थे मूसा अलैहिस्सलाम से। अब उसके बाद जब ये सारा वाक़या हुआ और आता है तफासिर में, अल्लाह आलम, कि इनके बहुत ज़्यादा सवाल करने की वजह से, डिमांड करने की वजह से वो गाय इन्हें बहुत कॉस्टली पड़ी, क्योंकि ढूंढना पड़ा। अरे भाई इतना प्रॉपर गाय कहाँ से लेकर आए हम, अभी तो बहुत लाले पड़ गए, बहुत पैसा देना पड़ा इन लोगों को, ऐसे सब ना। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ये मामला क्यों करवाया, क्योंकि याद करो उस वक्त को कि जब तुमने एक आदमी का, एक जान का कत्ल कर दिया था, और उसका इल्ज़ाम तुम है ना किसी और पर डाल रहे थे। तो अल्लाह तो निकालने वाला था जो भी तुम छुपा रहे थे, ये छुपा रहे थे ना जो कातिल था। फिर उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर हमने कहा मारो उसको उसके बाद हिस्से पर, ठीक है। यानी गाय का कोई उसको ज़िबा करने के बाद उसका कोई हिस्सा है उस मुर्दे के ऊपर लगाओ, तो फिर वो ज़िंदा हो जाएगा। और आता है रिवायतों में कि ऐसा उन लोगों ने किया, तो फिर उसके बाद जो है वो इंसान ज़िंदा हो गया। उसने खुद ही अपने कत्ल की गवाही दी कि मेरा जो है वो कातिल कौन है, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ये बोल रहे ना निकालने वाला था, और उसने कत्ल जो है वो गवाही दे दी अपने कातिल की। तो अल्लाह ताला बोल रहे देख लिया, ये तुम्हें नमूना दिख गया, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और इसी तरह वो दिखाता है अपनी आयतें। क्यों? ताकि तुम अकल का इस्तेमाल करो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सोचिए ज़रा। इसलिए तमाम चीज़ें दिखाई गई थी उनको कि उनको यकीन हो जाए अल्लाह पर, आखिरत पर, हर चीज़ पर उन्हें यकीन हो जाए। लेकिन बहुत बदबख्त थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ये तमाम वाक़या देखकर तो इनका दिल दहल जाना चाहिए था, लेकिन हाल क्या था इनका? अल्लाह ताला कहते हैं ये वाक़या देखने के बाद भी सुम्मा कसत कुलूबुकुम,
یہ واقعہ دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل اور سخت ہو گئے. چلو اتنی سخت دل کی سختی کا یہاں پر کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائپس بتائے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے. تو کیسے؟ جیسے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ. اللہ اکبر. ہم سوچیں گے پتھر سے بھی زیادہ سخت کچھ ہوتا ہے. آپ بولو گے ہاں لوہا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. تو آپ اس سے بھی زیادہ کچھ سخت چیز سوچیں. ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بلکہ اس سے بھی سخت. کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پھوٹ پڑتی ہیں جس میں سے نہریں، اور بے شک اس میں سے جو ہے وہ کوئی پتھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے یعنی کہ پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈھلک جاتے ہیں اور جو لرز جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سبحان اللہ. اللہ بے خبر تھوڑی ہے تمہاری حرکتوں سے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. سوچیے اب اس آیت پر نا یہاں لکھے کہ یہی حال جو ہے قرآن کو سن کر سمجھنے کے بعد جن کے دل میں آیتیں اثر نہیں کرتی، جو عمل نہیں کرتے، ان آپ لکھیں یہاں پر ان کے دلوں کا حال یہاں پہ اللہ بیان کر رہا ہے. اگر میں اور آپ عمل کی بات لینا چاہتے ہیں تو یس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے ان کے پر، پتھر کے پتھر پڑے ہوئے دل ان کے. کیونکہ دیکھیں اب میرے اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ تو نہیں ہوگا، لیکن قرآن کا پانی اس وقت جو آپ کے دلوں پہ پڑ رہا ہے نا، یقین کریں جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا نا کہ آپ میں سے جو پہلی دفعہ قرآن کو سن رہا ہے نا وہ بڑے خوش نصیب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کا ٹیسٹ ہے یہ کہ یہ قرآن کا پانی میرے دل پہ پڑ رہا ہے تو میرے دل کی جو مٹی ہے وہ سافٹ ہو رہی ہے، یا پھر اور آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ قرآن اس طریقے سے سن کے مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ میں سے کوئی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی قرآن سے دور ہو سکتا ہے. لیکن جو ہوا تو سمجھ جائیں کہ وہ اس کے لیے بڑی بدبختی کی نشانی ہے. اور پہلی دفعہ کا جو قرآن دل پہ پڑتا ہے نا اثر کرتا ہی کرتا ہے، وہ الحمدللہ کرتا ہی کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے آپ نے بھی اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھا ہوگا کہ جب گیلی مٹی سوکھتی ہے نا اور زیادہ کڑک ہو جاتی ہے اور زیادہ سخت ہوتی ہے، تو اپنے دل پر جو یہ پانی آپ کا جا رہا ہے نا قرآن کا پانی، اپنے دل کو آپ سوکھنے نہ دے. ہمیشہ اس کو قرآن کے پانی سے گیلا کرتے رہیں، اس کو نم رکھیں تاکہ یہ آیتیں آپ کے دل میں اترے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. نہ سمجھے تو آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجئے گا اور اس کو اپنے اندر ایبزارو کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ یاد رکھیں کہ جو مٹی پانی اندر لے لیتی ہے وہی پھر پودوں کو اور پیڑوں کو فائدہ دیتی ہے. اوپر کا سوکھا ہوا پانی تو بیکار ہی ہو جاتا ہے. تو اپنے دل کی مٹی کو نرم رکھیں ہمیشہ اور آیتوں کو ایبزارو کرنے کی کوشش کریں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو افا تطمعون. اب کیا ہوا پتہ ہے، بڑے غضب کی بات ہے، آپ سنیے گا. تو جب یہ باتیں یعنی کہ اللہ کے رسول نے سنی اور کہ ایسا لگا کہ اوہو اچھا یہ باتیں اگر ہم مکہ والوں کو سنائیں گے تو واہ کتنی اچھی بات ہے، پھر تو سارے لوگ ایمان لے کر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بولتے نو 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 نو، ایسا مت سوچو. تم نے کیا سوچ لیا، تم کیا خواہش رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یقیناً ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو اللہ کا کلام تو سنتا ہے لیکن کیا کرتا ہے پھر ثم یحرفونہ من بعد. یہ ہے بدبختی کی نشانی. وہ اس کو چینج کر دیتا ہے. کب؟ ما عقلہ وہم یعملون. اللہ اکبر. یعلمون. کب وہ اس کو چینج کرتا ہے؟ اس کو سنتا ہے اور اس کو سمجھ بھی جاتا ہے اور جان بوجھ کر وہ باتوں کو بدل دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی محفل میں کچھ لوگ آتے تھے ایسی حرکتیں کرتے تھے. آپ کو بھی ایسے لوگ ملیں گے. آپ بولو گے کچھ، آپ کی بات میں مرچ مسالہ لگا کے وہ پہنچائیں گے کچھ. یہ کرتے تھے یہودی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا. اور یہ لوگ تو پتہ ہے یہ لوگ تو انتظار کرتے تھے، یہ یہودی جو بنی اسرائیل میں سے تھے کہ ہاں آخری رسول آئیں گے، دوسرے لوگ ہمارے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں پھر ہمیں نجات ملے گی ایسا ویسا. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے رسول آئے تو ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے. یہ آج جیسے فتنہ ہے نا مسلمانوں کا،
میں کیوں سنوں ان کی باتیں، میں تو نہیں جانے والی ان کی محفل میں، ان کے کلاس میں، یہ میرے مسلک کی نہیں ہے، یہ میرے جو ہے سمجھے کہ فرقے کی نہیں ہے۔ یہ فتنہ نا پہلے بھی تھا، اللہ کے رسول کے سامنے بھی تھا۔ کیوں نہیں جاتے تھے یہودی اللہ کے رسول کی محفل میں؟ نہیں نہیں، یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو بڑی پریشانی تھی۔ مکہ میں تو یہ مشرک اور یہ لوگ پریشان کرتے تھے، پھر مدینہ میں جا کے وہ منافق لوگ اللہ کے رسول کو پریشان کرتے تھے اس طریقے سے۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے چینج کر دیا اس بات کو، اور ایک بدماشی ان کی یہاں بتائی جا رہی ہے، یہ سب جرم تھے ان کے یہ۔ اور ایک بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کا حال ایسا تھا کہ جب کبھی بھی وہ ایمان والوں سے ملتے تھے نا تو کہتے تھے آمنا، اوہو ہم بالکل تمہاری طرح، اچھا اللہ کے رسول نے یہ کہا، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، سنو 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 تم بھی مانو اس کو، اللہ کے رسول بہت اچھا کام کر رہے ایسا ویسا۔ اور جب جو اکیلے ہوتے یعنی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ایک دوسرے سے، تو کہتے تھے، دیکھیں کیسا ڈانٹتے تھے اپنے لوگوں کو، کیا ڈانٹتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کیا تم بتاتے ہو انہیں جو اللہ نے کھول دیا تم پر، اور اس طرح تو وہ حجت کریں گے تم پر، یعنی اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے، تم کو عقل نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا سمجھے آپ لوگ، کیا سمجھے؟ دیکھیے یہودی لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے یہ لوگ، اب یہ جو یہودی کے علماء ہوتے تھے نا، ان کے عالم لوگ جو ہوتے تھے نا، جب یہ بیچارے تھوڑے سے کم پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس جاتے تھے نا، اور پھر یہ لوگ کچھ اپنی سنے ہوئیں گے اپنے علماؤں سے، ہاں اللہ کے رسول ہماری کتابوں میں بھی ایسی باتیں لکھی، آپ سچ فرما رہے ایسا ویسا، تو یہودی کے جو عالم لوگ ہوتے تھے نا وہ چلاتے تھے ان کو، کیوں جاتے ادھر، نہیں جانے کا ان کی محفل میں، کیوں نہیں جانے کا؟ کیونکہ پھر ہے نا قیامت کے دن یہ لوگ گواہی دیں گے، اللہ کے رسول یہ یہودی لوگ جو تھے ہماری محفل میں آتے تھے، ہم نے ان کو حق بتایا، قرآن میں ایسا ہے سب، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو تم کیوں چاہتے ہو ان کے پاس؟ آج بھی ایسی ہے نا، کچھ لوگ مسلک کے نام پہ، گروہ کے نام پہ آپ کو بھی روکیں گے، کیوں سنتے ہو ان کو، ان کی تفسیر نہیں سننے کا؟ اور جو لوگ، اور اکثر ایسے لوگوں پر الزامات لگائے جاتے ہیں جو حق بات لے کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، حق بات لے کر نکلتے ہیں، ان کی وجہ سے سماج میں چینجز آتے ہیں نا، انہی کے اوپر پھر کہ سارا جو ہے الزام لگایا جاتا ہے اور اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ علماء جو تھے یہودی کے، یہ اللہ کے رسول کی محفل میں جانے سے اپنے ہی لوگوں کو روکتے تھے کہ مت جاؤ، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے نا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کو تو سب پتا تھا قرآن میں کیا ہے، پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، چلے ٹھیک ہے، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولا یعلمون، اب یہ بدماشی کیوں کرتے تھے، بڑی حیرانی کی بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے پیٹھ پیچھے اتنی باتیں کرتے تھے، کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، کیسے تھے، امیون تھے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، نمبر 1، اور لا یعلمون الکتاب، کیوں ان کو امی کہا گیا ہے یہاں پر اللہ نے ان پڑھ کس کو کہا ہے؟ جس کو کتاب کا علم نہیں ہوتا ہے، سمجھ جائیں، آج میں کتنی بھی دنیا کی ہائی ایجوکیشن لے لوں اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ قرآن میں کیا ہے، تو میں بھی اللہ کی نظر میں جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، جی، اللہ کی نظر میں جاہل اور ان پڑھ وہ ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، جیسے اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ کیوں اللہ نے ان کو ان پڑھ کہا؟ کیونکہ لا یعلمون الکتاب، بیچارے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب میں کیا ہے۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں الا مانیو وانہم الا یظنون، ہاں لیکن وہ کیا کرتے تھے، بڑی تمنا رکھتے تھے، تمنا رکھتے تھے، اور نہیں ہے وہ مگر صرف ایک گمان ہے، کس چیز کا تمنا رکھتے تھے آگے بھی ہم پڑھیں گے جا کر، انہیں بڑی تمنائیں ہوتی تھی کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہم ان پڑھ ہیں، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور ایسا ویسا، اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں انہوں نے اتنی جرت کیوں کی اللہ کے رسول کو پریشان کرنے کی، کیونکہ یہ کیا سوچتے تھے کہ ہماری جو باتیں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ بول رہا ہے تم بھول گئے ایک عالم الغیب بیٹھا ہے تمہاری باتیں سننے کے لیے، اس کو سب پتہ ہے، تم چھپا رہے ہو لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو الحمدللہ آدھا سپارہ ہمارا یہاں پر ہو گیا، جزاکم اللہ خیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.